So today we will be talking about again climate chapter. It's a huge chapter. We have in the last class we were talking about winter climate. What are the reasons? What are the causes for winter season to take place in India? In which we talked about different kinds of the pressure, different places. There are different pressures. We talked about temperature. We talked about rainfall. We talked about certain exceptions or certain places which receive rainfall only during the winter season in case of India. Today we will be talking about the hot weather season. Firstly, temperature. With the apparent northward movement of the sun, अभी why is there a summer? हमारी कंट्री में summer कब होती है? जब sun parallel to the Tropic of Cancer. This is Tropic of Cancer. The sun is here. In this case, there will be sun. So when the apparent northward movement of the sun towards the Tropic of Cancer in March, temperature starts rising in the North India. Temperature आपका बढ़ने लग जाता है. April, May, June are the months of summer in North India. तो endless लगती है summer. April, May, June, July. So there is April, May, June months of summer in North India में. In most parts of India, temperature recorded are between 30 to 32 degree Celsius. So temperature कितना होता है? Mostly 30 to 32 degree Celsius. Mostly everywhere. Obviously, it reaches to its maximum to around 47, 48 degrees on certain days. In March, the highest day temperature of about 38 degrees Celsius occurs in the Deccan Plateau, while in April, temperature ranging between 38 degrees Celsius and 43 degrees Celsius are found in Gujarat and Madhya Pradesh. So they are telling कि March में around 38 degrees Celsius temperature होता है Deccan Plateau. Deccan Plateaus are the parts of मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र का कुछ जो रीजन जो आपका ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेटू वाला जो रीजन है वहाँ पे मार्च में टेम्परेचर इज मैक्सिमम टेम्परेचर इज 38 डिग्री सेल्सियस. वाइल अप्रैल में टेम्परेचर कितना होता है 38 डिग्री टू 43 डिग्री सेल्सियस गुजरात और महाराष्ट्र में रिस्पेक्टिवली. इनमें द हीट बेल्ट मूव्स फर्दर नॉर्थ और ऊपर आ जाती है एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया टेम्परेचर इज अराउंड 48 डिग्री सेल्सियस are not uncommon. So मतलब ये कह रहे हैं कि 48 डिग्री सेल्सियस तो बहुत इजीली टेम्परेचर आपको मिल जाएगा. नॉट अनकॉमन मतलब इट्स वेरी कॉमन. ठीक है, नॉट अनकॉमन. दो नेगेटिव आ गए. दो नेगेटिव इन अ सेंटेंस व्हेन देयर आर टू नेगेटिव्स सो इट बिकम्स अ पॉजिटिव सेंटेंस. ठीक है, अंडरस्टैंड दिस लॉजिक ऑफ ग्रामर. सो नॉट अनकॉमन. सो अन इज समथिंग नॉट ना नेगेटिव हो गया, वो नॉट नेगेटिव हो गया. सो नाउ इट बिकम पॉजिटिव. 48 डिग्री सेल्सियस इज कॉमन. The hot weather season in South India is mild. Obviously, वहाँ पे सब कुछ mild ही है because of the moderating effect of the sea. The hot weather sea in South India is mild and not so intense as found in North India. North India in comparison में वहाँ का climate काफी mild है. The peninsular situation of South India with moderating effect of the ocean keeps the temperature lower than the prevailing in North India. नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर इसलिए हमेशा कम रहेगा. नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में साउथ इंडिया का टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है बिकॉज उनकी ओशन से घिरे हुए हैं, ओशन से सराउंडेड है एंड ओशन प्रोवाइड्स व्हाट मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द लैंड. So temperature remains between 26 degree Celsius and 32 degree Celsius. So temperature किसके बीच में रहता है 26 and 32 के बीच में. ड्यू टू एल्टीट्यूड जो वेस्टर्न घाट्स का टेम्परेचर है वो लो होता है अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस. इन द कोस्टल रीजन नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ आइसोथर्म पैरेलल टू द कोस्ट confirms that temperature does not decrease from north to south, rather it increases from coast to the. ऑब्वियसली बात है कि कोस्ट के पास तो मॉडरेटिंग इफेक्ट है ना. जब आप कोस्ट से इधर चले जाओगे, जब आप कोस्ट से अंदर की तरफ मूव करोगे तब आपका टेम्परेचर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता कि आप हाइट की वजह से एल्टीट्यूड मतलब आप जैसे नॉर्थ टू साउथ जाओगे तो गर्मी बढ़ेगी या साउथ टू नॉर्थ जाओगे. कहना जब आप इंटीरियर जाओगे मतलब जब आप कोस्ट से अंदर की तरफ जाओगे देन देयर विल बी अ राइज इन द टेम्परेचर व्हिच मींस देन देयर विल बी थोड़ी गर्मी यहाँ पे अंदर की तरफ होगी, बाहर की तरफ इतनी गर्मी नहीं. अगर एवरेज देखा जाए पूरे साउथ इंडिया का सो इट इज नॉट वेरी हॉट. बहुत ज्यादा ओवर गर्मी नहीं. The mean daily minimum temperature during the summer months also remain quite high and rarely goes below 26 degree
सेल्सियस। तो मीन जो डेली मिनिमम टेम्परेचर है समर मंथ में वो काफ़ी ज़्यादा रहता है और मतलब बहुत रिमेन्स क्वाइट हाई और रेयरली मतलब हाई हमने पहले से पढ़ा था तो उनका मीन टेम्परेचर इज 18 डिग्री सेल्सियस। किसका? साउथ इंडिया में 18 डिग्री सेल्सियस है, 18 to 20 और समर मंथ में इट गेट्स टू 26 डिग्री सेल्सियस एंड विच इज मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट इज प्रेशर एंड विंड्स। The summer months are a period of excessive heat and falling air pressure in the northern half of the country because of the heating of the subcontinent. The IT season moves northward, occupying a position centered at 25 degree north in July. वही वो बात कर रहे हैं कि बिकॉज IT सीजन मूव्स अपवर्ड, तो वो जो प्रेशर बन जाता है वो हाईली लो प्रेशर, मतलब जहाँ पे हीट आपकी एक्सेसिव हीट होती है, एयर फॉल करती है यहाँ पे बिकॉज सबकॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, IT सीजन ऊपर मूव कर रहा है। रफली दिस इलोंगेटेड लो प्रेशर मॉनसून थ्रो एक्सटेंड्स ओवर द थार डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्ट टू पटना एंड छोटानागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट साउथ ईस्ट। तो ऑलरेडी ये जो लो प्रेशर है कहाँ से शुरू होती है? ये थार डेजर्ट फ्रॉम इधर से, थार डेजर्ट से आपकी शुरू होकर कहाँ तक जाती है? नॉर्थ वेस्ट टू पटना, नॉर्थ वेस्ट टू पटना, फिर छोटानागपुर प्लेट्यू इन दी साउथ ईस्ट के पूरा रीजन में आपके यहाँ पे आपको ये IPCZ की बेल्ट इंडिया में मिलेगी। The location of IPCZ attracts a surface circulation of winds which are southwesterly on the west coast as well as along the coast of the West Bengal and Bangladesh। तो ये बोल रहे हैं IPCZ से सर्कुलेशन ऑफ विंड्स होता है विच आर साउथ वेस्टर्ली ऑन दी वेस्ट कोस्ट। बेसिकली वही जो हमने पहले बात करी थी कि IT सीजन की वजह से जो विंड्स है वो साउथ वेस्ट से नीचे से ऊपर आके यहाँ पे आपके यहाँ से इमर्स हो जाती है ना, इधर से इधर मुड़ जाती है, इधर घूम जाती है इस तरह। सो दिस इज दी बिकॉज ऑफ IT सीजन। The location of IT season, okay, they are easterly or southeasterly over, they are easterly or southeasterly over North Bengal and Bihar। से क्योंकि इधर से बंगाल इधर से तो घूम के ऐसे हो गई ना, इस तरफ से तो ईस्टर्ली हो गई कायदे से क्योंकि इस डायरेक्शन से आ रही है, या फिर आप बोलो नीचे से आ रही है तो साउथ ईस्टर्ली हो गई, तो साउथ ईस्टर्ली मान लो कि नीचे से आ रही है या फिर ईस्टर्ली मान लो, and it turns because of IT। It has been discussed earlier that these currents of southwesterly monsoon are in reality displaced equatorial westerlies। तो भाई इक्वेटोरियल में इक्वेटर में वेस्टर्लीज चलनी चाहिए थी, वो वहां से डिस्प्लेस होके ऊपर आ रही है बिकॉज ऑफ IT सीजन। बिकॉज ऑफ IT सीजन तो एक्चुअली में इक्वेटर में चलने वाली वेस्टर्ली हवा है ना, इक्वेटर में जो चलती है, बट बिकॉज IT सीजन ऊपर मूव कर गया है तो उस वजह से ये विंड्स का डायरेक्ट ये भी डिस्प्लेस हो गई है और उसके साथ ऊपर। The influx of these winds by mid-June brings about a change in the weather through the rainy season। तो जब ये winds आती है मिड जून में तो चेंज इन वेदर होता है और आपको रेनी सीजन समझ में आया? In the heart of the IT season in the northwest, the dry and the hot winds known as loo blow in the loo चलती है ना गर्मियों में, मम्मी बोलती होगी बाहर मत जाओ या थक के रहो या जो भी है बाइक पे मत घूमो, बिकॉज ऑफ दैट। हाँ लू, और लू चढ़ भी जाती है, आपको बुखार फीवर वगैरह होता है, बिकॉज चढ़ना इन द सेंस ऐसा नहीं है कि पे चढ़ गई है। लू सिंपली मीन्स दैट इज अ वेरी हॉट ड्राई विंड एंड यू व्हेन यू इनहेल इट, उसमें गंदगी है, खराब है, वो आप गर्मी करती है पूरी। क्लियर? सो ये IT सीजन के सेंटर में नॉर्थ इन द आफ्टरनून एंड वेरी ऑफन दे कंटिन्यू टू वेल इन मिडनाइट, और मिडनाइट तक कंटिन्यू मतलब रात तक भी गर्म हवाएं कभी कभी होता है ना चलती रहती हैं। They continue to dust storms in the evening are very common during May in Punjab। जो dust storms हैं एक जब लू चलती है तो इसके साथ, क्योंकि जो अगर खाली जमीन है, पेड़ पौधे नहीं है, नॉर्मल डस्ट है, तो ये हवा के साथ साथ डस्ट स्टॉर्म, जैसे राजस्थान में लू तो लू गर्म हवा चलेगी बट उसके साथ डस्ट भी फूटने लग जाएगी, देन इट विल बी नोन एज अ डस्ट स्टॉर्म। हाँ, में पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान, उत्तर प्रदेश में ये कॉमन है। These temporary storms bring a welcome respite from the oppressing heat since they bring with them light rains and pleasant cool breeze। Okay, so dust storms in the evening, ये dust storms और blue color ने अलग-अलग बताया है, और ये जो dust storms है ये तो
प्लेंटी होता है ना, शाम में आप छत पे जाके जाते अच्छी हवा आ रही है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी होती है उसमें, बट देन इट्स प्लेजेंट, क्योंकि थोड़े बहुत बारिश वारिश और क्योंकि इवेपोरेशन होकर कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत अगर इन्हें कहीं मिलता है, और अगर हैवी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं करते हैं ये, बहुत बहुत लाइट रेन शावर्स करते हैं, एकदम झिमझिम झिमझिम जो बारिश होती है, बट लाइक स्टिल देन इट्स नॉट अ वेरी रेगुलर फिनोमेना. These temporary, occasionally the moisture-laden winds are attracted towards the periphery of the trough. A sudden contact between dry and moist air masses gives rise to local storms of great intensity. Occasionally जो moisture-laden winds, यानी कि नीचे से winds आ रही है moisture वाली और ऊपर से जो इधर से चल रही है dry winds, ये जब मिल जाएंगी तो इसकी वजह से क्या होता है, और रेनफॉल, ज़्यादा रेनफॉल, बहुत हाई रेनफॉल हो सकता है, ग्रेट इंटेंसिटी के लोकल स्ट्रॉम्स वगैरह आ जाते हैं. हमने पढ़ा था ना, जब दो एयर मास आपस में मिल जाएंगे, दो एयर मास आपस में मिल जाएंगे तो प्रॉब्लम्स तो होंगी. तो लोकल स्ट्रॉम्स वगैरह अगर होते हैं, रेन्स हो सकती हैं आपकी. These local storms are associated with violent winds हो सकती हैं, torrential rain और even hailstorm. hailstorm क्या होते हैं, ओले जो पड़ते हैं. So ये सारी चीज़ें हो सकती हैं when the situation comes. तो याद है मैंने आपको, हम जब लोकल विंड्स के बारे में पढ़ रहे थे इन दी फिजिकल ज्योग्राफी, मैंने आपको बताया था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकल विंड, जैसे कि मैंगो शावर, चेरी ब्लॉसम, तो उनके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है. सम फेमस लोकल स्टॉर्म्स और हॉट वेदर, एक तो लू हो गई जो आपके नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में चलती है. सेकेंड इज मैंगो शावर. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द समर देयर आर प्री मॉनसून शावर. समर जब खत्म होने लगती है तो मॉनसून आने से पहले थोड़ी बहुत बारिश होती है, जो कि कॉमन है केरला में और कर्नाटका के कोस्टल एरियाज में. लोकली इनको मैंगो शावर्स बोलते हैं बिकॉज क्योंकि मैंगो को राइप करने के लिए बारिश बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है. नेक्स्ट इज ब्लॉसम शावर. व्हेन दिस शावर कॉफी फ्लावर ब्लॉसम्स इन केरला एंड नियरबाई एरियाज. याद रखना है, मैंगो शावर में मैंगो करेगा, ब्लॉसम शावर में कॉफी के जो फूल होंगे वो ब्लूम करेंगे. Nor'westers, these are dreaded evening thunderstorms in Bengal and Assam. ये बहुत ही ज़्यादा dreaded thunderstorms होते हैं, बंगाल और असम में आते हैं. ये बहुत ही notorious in nature. notorious का मतलब होता है शैतान, बट लेकिन notorious here means काफ़ी destruction वो create करते हैं. Notorious nature can be understood from the local nomenclature of काल बैसाखी, a calamity of the month of. काल मतलब होता है ना बुरा, काल होता है ना बुरा दिन. काल बैसाखी मतलब बैसाखी के टाइम पे एक ऐसा दिन या काल बुरा टाइम है जो कि बहुत ज़्यादा, बिकॉज इट गेट्स डिस्ट्रक्टिव. ये आपको बहुत सारा डिस्ट्रक्शन लेके आती है, हार्म करती है आसपास के एरिया को. और इन दी शावर, बड़ी शावर यूजफुल होते हैं आपके टी के लिए, जूट के लिए और राइस के कल्टीवेशन. इन असम दी स्टॉर्म्स आर नोन एज बारडोली छेरा. इनको बारडोली छेरा भी याद रखने हैं ये सारी चीज़ें. एंड आई डोंट हैव अ क्वेश्चन पेपर, बट आप घर जाके टाइप करोगे ना मैंगो शावर्स, लोकल विंड्स, आपको यूपीएससी में क्वेश्चन मिल जाएंगे इनसे रिलेटेड. दे आस्क कि कौन सी कंट्री में या कौन सी कंट्री यानी कौन से स्टेट में ये शावर चलते हैं, जैसे कि लू इनमें से कौन से स्टेट में चलती है, या इन स्टेट में से इनमें से कौन सी फॉलोइंग लोकल विंड्स चलती हैं. हमने लू के बारे में पढ़ा, मैंगो शावर, ब्लॉसम शावर, नॉर्थ वेस्टर्स. अब नॉर्थ वेस्टर्स को आपसे नॉर्थ वेस्टर एक बार को नहीं पूछा जाए, आपसे इनके लोकल नेम्स पूछे जाएंगे, जैसे कि बांग्लादेश में या बंगाल में इनको काल बैसाखी बोलते हैं और असम में इसको बारडोली छेरा बोलते हैं. बारडोली छेरा वाला क्वेश्चन वाज देयर लास्ट ईयर और लास्ट ईयर. सो दीज थिंग मैं क्यों टेबल बढ़ा रही हूँ, स्पेशली जो आपके ज्योग्राफी के बुक के जो डब्बे हैं ना, इनसे क्वेश्चन मोस्ट केसेस में आ जाते हैं, जैसे ITCZ से हो गया या इससे हो गया. स्टार्टर में तो 2 ही हैं, और भी जितने भी आप बॉक्सेस देखोगे, सो इन बॉक्सेस से देयर आर क्वेश्चंस फ्रॉम इन UPSC इन फ्यूचर. सो आई हैव मेंशन्ड टाइम एंड अगेन दैट डू नॉट थ्रो अवे दीज बुक्स. रद्दी में मत दे देना इनको, कीप इट विद यू, इट आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई बॉट दीज बुक्स, ये मेरी बुक्स है, मैंने स्कूल से नहीं ली है, ये मैंने पढ़ने के लिए खुद ही खरीदी हुई है, मैंने बच्चे से या किसी से नहीं. दीज आर माई बुक्स बिकॉज मेरे पास ज्योग्राफी नहीं थी 11th-12th में, बट देन आई हैड टू स्टडी. तो तू पैसे बर्बाद करो, अपनी संभाल के रखना. डू नॉट विदाउट गिविंग इट टू सम जूनियर, टेक इट बैक फ्रॉम देयर. ठीक है, इस शर्त में देना कि वापस नहीं दी तो देखेंगे क्या होगा. ओके, लू समझ में आया. हॉट ड्राई एंड ऑप्रेसिव विंड्स नॉर्दर्न प्लेन्स में चलती हैं, पंजाब से लेके बिहार में. काफी ज्यादा इनकी हाई इंटेंसिटी होती है दिल्ली और पटना के बीच में.
अंडरस्टैंड चाइल्ड मीन्स लोकल मीन्स समझ में आई। मैंगो शावर कहाँ होते हैं? कर्नाटका एंड केरला कोस्ट में। ब्लॉसम शावर केरला और आसपास के एरियाज में। काल बैसाखी बंगाल, बारडोली शेरा असम, इन दोनों को नॉर्थ वेस्टर्न भी बोलते हैं, काफी नोटोरियस होती है। एंड फाइनली लू व्हिच इज इन नॉर्दर्न। Care about hot weather season?